Pati, today I will teach you about your grammar list chapter number 3rd class 7th about the suffix and prefix. What is suffix and what is prefix? How you know about the suffix and prefix? Firstly, suffix, after that prefix. सफिक्स एंड प्रीफिक्स, इसको आप कैसे समझेंगे कि सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है? हाउ यू आइडेंटिफाई अबाउट दी सफिक्स एंड प्रीफिक्स. इसको हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं, इसको उपसर्ग बोलते हैं, इसको प्रत्यय बोलते हैं. सफिक्स और प्रीफिक्स जो होता है, सफिक्स जो होता है वो किसी भी वर्ड में लास्ट में लगता है. सफिक्स किसी भी वर्ड में लास्ट में लगता है और प्रीफिक्स जो होता है वो किसी भी वर्ड में पहले लग जाता है. लाइक आपने देखा कंफर्ट. कंफर्ट इज ए वर्ड. कंफर्ट मीन्स होता है आरामदायक, आराम. कंफर्ट मीन्स होता है आराम. अब व्हेन यू ऐड इन दिस वर्ड ए सफिक्स कंफर्टेबल, इट्स मेक अनदर वर्ड्स दैट्स नेम इज कंफर्टेबल एंड इट मीन कंफर्टेबल वर्ड मीनिंग इज आरामदायक. जब सिर्फ कंफर्ट था दैट्स मीन ओनली आराम. And when we add in this words able, it's make a different types of word that's name comfortable and its meaning in Hindi आरामदायक. तो इसमें able जो है वो suffix है, it is suffix. able word is a suffix. और same this types in prefix. fair, fair, fair means गोरा या अच्छा. आपको इसमें prefix यूज करने हैं. You don't use here any words. You before words, after words, before words. We use suffix after words, we use prefix before words. UN, unfair. When you fair means अच्छा. When you अक्सर ये अपोजिट ही निकल के आते हैं. जब आपने इसको यहाँ पे prefix यूज किया that is UN. unfair वो मतलब सुंदर नहीं है, that is called prefix. And suffix and prefix is also used in your adjective. सफिक्स और प्रीफिक्स को हम एडजेक्टिव में भी यूज करते हैं, एडजेक्टिव भी बनाते हैं. ओनली कंफर्ट इज ए वर्ड. When we add suffix in this comfortable, that's make a complete adjective. ये आपका complete adjective बन गया. Fair is a only word. Fair is a only word. When we add before the words un, it's make a different types of word that is called unfair. It is a adjective. पहले ये prefix था. When we add सबसे पहले ये word है. Fair is a firstly it is words. When we add in this before prefix, it's make a different types of word. Its meaning is opposite to fair and it is a make different types of meaning and also adjective. It is a suffix and prefix. Same this types और सारे मैं आपको बता रही हूँ. Like happy, it is a words. You know about this. You know about the meaning of happy. Happy means प्रसन्न होना. And when we use prefix in this, that is a unhappy. आप प्रीफिक्स उल्टा निकल के आता है. जैसे कोई भी वर्ड्स है आप उसमें प्रीफिक्स यूज करेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है. हैप्पी मीन्स खुश होना, अनहैप्पी मीन्स दुखी होना. सेम दिस टाइप से इट इज ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स एंड इट इज आल्सो ए एडजेक्टिव. यू नो अबाउट द सफिक्स एंड प्रीफिक्स. अब मैं आपको बताती हूँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन. कोई भी कंपैरिजन डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आता है. आपका वो आ जाता है कि आप एडजेक्टिव की डिग्री कैसे बनाते हैं, किसी चीज़ को कंपेयर कैसे करते हैं. जब आप किसी 2 or 3 or more and 2 or more things को when you compare 2 or more things with each other, that's make a degree of comparison. जब आप एक या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, that's makes a different degree of comparison. And how many types of degree of comparison? There are three types of degree of comparison. How many types of degree of comparison? Degree of comparison. It is a three types of. There are its answer is there are 3 types of degree of comparison. Like this comparative. First is comparative degree. First is positive degree. It is positive. First is positive degree. Second is comparative degree. After that superlative degree.
सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एंड यू नो अबाउट दिस इन प्रीवियस क्लासेस। आपने डिग्रीज के बारे में अपनी पिछली कक्षाओं में, फिफ्थ में, सिक्स में वेल स्टडी अबाउट दिस, आपने अच्छे से पढ़ा है। डिग्री मैंने आपको बताया था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। एंड इट इज एंड आल्सो इन दिस क्लास, इन 7th क्लास, you know about this positive degree. Which degree is called positive degree, which is comparative degree, which is superlative degree. There are 3 degrees in your adjective. Like when you talk about this, like जब आप किसी से बात, जैसे आपने एक थिंग्स, आपके पास कोई भी एक थिंग्स है, like your own book or teachers, anyone, जब आपका वन है, there is no comparison of adjective, वहाँ पे कोई भी adjective का कोई comparison नहीं होगा। When two teacher are two things, two places, any other things, देयर आर कंपैरेटिव डिग्री, वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आ जाए। और 2 आर मोर्स, 2 या 2 से ज़्यादा हुई तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री। और जो सबसे अच्छी है वहाँ, उन सब में सबसे अच्छा, जो सबसे बेस्ट है, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। लाइक गुड, बेटर, बेस्ट। गुड, बेटर, it is 3 kinds of degrees. It is positive degree, it is positive, it is comparative, it is superlative. How? कि कैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव आप इसको समझे। गुड, अच्छा, गुड मीन्स अच्छा, जो सिर्फ अच्छा है। यहाँ पे एक पर्सन है, या ही इज गुड बॉय, कुछ भी, या राम इज ए गुड बॉय, लाइक एग्जाम्पल लाइक दिस, राम इज ए, फॉर एग्जाम्पल राम इज ए गुड बॉय। Okay, in this sentence good is adjective, in this sentence good word is a adjective, and it has which types of adjective degree? It has comparative degree, it has positive degree, sorry, it is only positive degree। ये क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि सिर्फ राम के बारे, राम की अच्छाइयों को बताया जा रहा है, राम के डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है, सो इट इज पॉजिटिव डिग्री। व्हेन यू कंपेयर राम टू अदर बॉयज, देयर यू यूज कंपेरेटिव डिग्री। Ram is best to Shyam. Good, Ram is better than Shyam. Ram is better than Shyam. How you recognize, how you understand this sentence? Ram is a noun, you know about the subject. Better, good, better. It is comparative degree. Better is a, here better word is a adjective and degree of comparative, ये सेकंड डिग्री ऑफ कंपैरेटिव है। क्योंकि और आपको ये समझना होगा, जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे तो अक्सर, नॉट ऑलवेज, रेयरली यू राइट देयर देन, यहाँ पे आपको देन ही यूज करना है, क्योंकि आप 2 थिंग्स को कंपेयर करते हैं। व्हेन यू कंपेयर 2 थिंग्स विथ ईच अदर, यू ऑलवेज राइट बेटर आफ्टर देन। आपको वहाँ पे बेटर के आफ्टर देयर यूज करना ही है। इफ यू कैन नॉट राइट, इफ यू नॉट यूज देयर, देन देयर इज नो सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस, दिस इज नॉट करेक्ट सेंटेंस। इफ यू राइट बेटर आफ्टर दैट देन एंड श्याम, राम इज बेटर देन श्याम। अब राम से अच्छा कौन है? यू कंपेयर ये 2 बॉयज, राम एंड श्याम, एंड हु इज बेटर? राम इज बेटर देन श्याम। इन दिस सेंटेंस राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, और राम किससे अच्छा है? राम श्याम से अच्छा है। इन दिस सेंटेंस वी कंपेयर 2 बॉयज टू ईच अदर, बेटर फ्रॉम बेटर, राम इज बेटर देन श्याम। And now I will teach you about this superlative degree, your third degree, superlative degree. How you understand which is superlative degree? Superlative degree में आपको क्या करना होगा? इन सब में जो अच्छा होगा, इन सब में जो अच्छा होगा, like कृष्णा is best boy of all। अब आपको ये समझना होगा कि कृष्णा इन सब में सबसे अच्छा है। कृष्णा जो है, राम और श्याम से भी कृष्णा जो है वो सबसे अच्छा है। गुड, बेटर, बेस्ट। इन दिस सेंटेंस बेस्ट वर्ड इज एडजेक्टिव एंड इज द डिग्री ऑफ सुपरलेटिव, और ये सुपरलेटिव डिग्री है, एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री। राम इन दोनों से भी, कृष्णा जो है इन दोनों से भी अच्छा है। सेम दिस टाइप से आपको कुछ भी राइट करना है, या काउ इज बुल्की एनिमल्स, या कुछ भी एलिफेंट इज द ग्रेटेस्ट एनिमल्स, जो भी सबसे ज़्यादा जाए। आपने इसको अच्छे से पढ़ाया अपनी पिछली कक्षाओं में, और आज मैं आपको बता रही हूँ डिग्री ऑफ कंप्लीशन हो गया है। आपका एक्सरसाइज नंबर है 20।
20 पेज आप ओपन करिए। लेसन 3 में आप चैप्टर 3 में 20 पेज ओपन करेंगे। आपका ING लगाने के बाद भी जैसे इमेजिंग, बॉइलिंग, एक्साइटिंग, देखो इसमें लिखा है बोरिंग, पैक, स्मोकिंग, मैक, कुकिंग, एक्साइटिंग, जहाँ पे आप ING लगा देंगे दैट्स इज अदर एडजेक्टिव। इसके बाद आपको एक्सरसाइज करना है जो पेज नंबर 22 पे है। ये सारी एक्सरसाइज एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। आफ्टर दैट आई विल टेल यू अबाउट द टुमारो करेक्ट यूजेज ऑफ सम एडजेक्टिव। थैंक यू।